Welcome back. In this class, we are discussing about some very important definitions of row spaces and column spaces of a matrix, also null space of a matrix. Okay. Also, we see what is the relation between row space and column space, and what are the contrast between row spaces and column spaces. Okay, for a given matrix. So watch this important lecture till end. Okay, now first one, define the column space, and very simple definition of column space in linear algebra. The column space, also called the range or image of a matrix capital A, is the span. Simply, what the column space of a matrix A is a span, that means set of all linear combinations of its column. ओके, क्लियर। यानी अगर कोई आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है तो उस मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, उन कॉलम्स से हम जिस वेक्टर को भी स्पैन कर पाएंगे, यानी जिस वेक्टर को भी हम इन कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, उसके कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? कॉलम स्पेस कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यानी मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो सपोज़ कीजिए मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, सपोज़ करते हैं ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, ठीक है। से इट इज़ 1 2 0 3 4 -1 3 2 2 1 3 5 1 -2 -3 -1। ओके, अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इसमें कितने कॉलम्स हैं? तो इसमें 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर कॉलम्स को आप देखें तो सो दिस इज C1, इट इज़ कॉलम 2, इट इज़ कॉलम 3 एंड इट इज़ कॉलम 4। सो द मैट्रिक्स हैज़ 4 कॉलम्स, C1 C2 C3 C4। ओके, क्लियर। अब देखिए, तो इसका कॉलम स्पेस क्या होगा? तो अगर मैं इसकी कॉलम स्पेस की बात करूं तो इसके कॉलम स्पेस को डिनोट किया जाता है, ठीक है। देयरफॉर कॉलम स्पेस of matrix A, that is C of A, simply we write it is denoted by C of A, and it is what? It is collection of X, collection of those vector, okay, which is generated by using these 4 columns. That means linear combination of alpha I Ci, where I is from 1 to 4, that is using these 4 columns. If we write any another vector x, then collection of these x are called column space of A. Clear? Okay, definitely this x consists C1 C2 C3 C4 and many more another vectors which are written as a linear combination of C1 C2 C3 C4. Clear? Okay, so where alpha I is from field of vector space. Clear? And Ci are the vectors, Ci are the column vectors of vector space V. Clear? So this is the column space of A. Okay, by similar way we can define the row space of a matrix. Okay, so for the row space is defined in similar way of कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ए। जिस तरीके से आपने कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ए को डिफाइन किया है उसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली रो स्पेस क्या हो जाएगा? रो स्पेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स विच कैन बी रिटेन एज linear combination of rows, that is span of rows, okay, Ri, where I from 1 to 4, if 4 cross 4 matrix, okay, definitely beta I from field, and Ri are the rows, that means field of the vector space V. Okay, clear? So if we are talking about this matrix again, then there will be 4 rows, R1 R2 R3 and R4. So this matrix can be written in terms of rows as R1 R2 R3 and R4. So if rows if any another vector which can be written by
using linear combination of these 4 rows, then that space is called row space. Clear? Okay, so we can define the row space as same as above. Okay, now what is the dimension of column space and row space? Okay, next one is dimension of dimension of row space. Okay, or we talk about a dimension of column space. Okay, then since row space is the collection of vector, or column space is the collection of vector which are the linear combination of columns of matrix, or for the row of matrix. Okay, but definitely for the dimension we have to need basis of row space. Okay, need to basis of row space, and basis for column space. Okay, now all the row or all the columns are linearly independent. This is not necessary. So for basis we must have a spanning property plus linear independent vector collection. Okay, so by definition of by definition of row space and column space, okay, since span property holds good. Okay, so in order to find dimension, we just choose the linearly independent rows for row space and linearly independent columns for column space. Clear? Okay, if we talk about the matrix, let A is matrix, any matrix of any size. Okay, then if we transform the matrix A in REF form, that means row echelon form, okay, then in row echelon form the number of non-zero rows, okay, number of non-zero rows are linearly independent. Okay, and for the columns in row echelon form, the columns with pivots with pivot element are linearly independent. Okay, what are the pivot element? This is already discussed in my last lectures of matrices, so please visit my playlist. Okay, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए कि क्या होता है. ठीक है, पिवोट क्या होता है, अच्छी चीज़ें ये सब आपको जाननी चाहिए. ऐसे मुझको पूरी उम्मीद है कि आप ये सब जानते होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे को नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चाहिए होता है. ठीक है, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है. तो यही जो क्वांटिटी है, इसके जो नंबर्स हैं, जो भी ये नॉन जीरो रो का नंबर होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका डायमेंशन ऑफ रो स्पेस. ठीक है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ए. ठीक है, और इसी तरीके से जब आप कॉलम्स को देखेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो जिन कॉलम्स में जो है पिवोट्स होंगे, ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. और डेफिनेटली जब इनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी कॉलम्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपके डायमेंशन को बताएंगे, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ए को. क्लियर है? ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है. ठीक है, तो देखिए रिलेशन है इन लोगों में. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस. ठीक है, तो देखिए रो स्पेस और कॉलम स्पेस ये आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो इनका डायमेंशन है, तो रिलेशन बिटवीन डायमेंशन मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा. डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस. ठीक है, तो रो स्पेस और कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन है वो हमेशा इक्वल आता है. ठीक है, रो स्पेस का डायमेंशन और कॉलम स्पेस का डायमेंशन ये ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल आएगा. यानी आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या बोलिए नंबर ऑफ कॉलम्स विथ पिवोट्स, ठीक है, इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा सेम आएंगे. और यही जो है इक्वल होता है किसके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के. यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, ये क्या होता है, ये ऑलवेज इक्वल होता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. ठीक है, so this is the relation between row space and column space. Okay, now talk about the null space. Okay,
So the definition of null space is, so the definition of null space of A is the set of all solutions to the homogeneous equation Ax equal to 0. ओके, एज इट नेम, जैसा इसका नाम है ना, नल स्पेस, नल का मतलब होता है क्या है, जीरो कर देना, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए से रिलेटेड जो होमोजीनियस इक्वेशन हम तैयार करेंगे, यानी ए इंटू एक्स इक्वल टू जब हम जीरो ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो भी सेट ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलता है एक्स का, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो नल स्पेस कहलाएगा। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई एन ए, इसको हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो एन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली, ठीक है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके। Next is dimension of null space. Okay, what is dimension of null space? Dimension of null space. Dimension of null space is also called nullity. Okay, this is called nullity, a very famous term in rank nullity theorem and very useful in linear algebra. Okay, so nullity is what? It is dimension of null space. Okay, it is dimension of null space, and dimension of null space is what? It means the number, the linearly independent vectors which spans in A. Okay, number of linearly independent vectors which spans null space A. Okay, तो नलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए अगेन, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं बात करूं कि अगर मेरा ए क्या है, वो 4x4 मैट्रिक्स है, ए आई जे, ठीक है, क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके जो नल स्पेस हैं, ठीक है, तो नल स्पेस ए में सपोज करते हैं हमको जो 4 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू 4 वेरिएबल, आपको क्या क्या मिलेगा। सपोज एन ए मेरे को मिलता है, ठीक है, दिस एक्स कंसिस्ट 4 वेरिएबल्स, इट इज़ x1, x2, x3, x4। क्लियर? ओके, सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0। नाउ it is not necessary that all 4 are linearly independent. Okay, so we choose the linearly independent vectors from these 4. Okay, or we can say that actually we are finding free variables, okay, in 4, due to which these 4 spans this x, okay, and also are linearly independent. So we go to collect the free variables from this collection. Okay, and इसको हम लोग कैसे करेंगे ये आपको बहुत बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है कॉलम स्पेस में और नल स्पेस में वो क्या है, वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप नलिटी फाइंड आउट करेंगे, नल स्पेस फाइंड करेंगे, देन यू गो टू चूज द फ्री वेरिएबल आउट ऑफ दिस 4। ओके, क्लियर? अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे यही जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होगा, यही क्या हो जाएगा, आपका नलिटी हो जाएगा, और इसी से आप फिर नल स्पेस भी फाइंड आउट कर पाएंगे, नल स्पेस का बेसिस आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। से सपोज करते हैं यहाँ पे कि मेरे को 2 यहाँ पे मिल जाता है फ्री वेरिएबल, x3 और x4 क्या मिल जाता है, आर फ्री वेरिएबल्स, ये मेरे को फ्री वेरिएबल मिल जाता है, ठीक है। देन क्या होगा, जो आपका नलिटी होगा, तो क्योंकि 2 आपको मिला है तो नलिटी जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। और जो आपको बेसिस चाहिए होगा नल स्पेस का, बेसिस फॉर नल स्पेस ए, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है, क्या, वो आपको वेक्टर्स मिलेंगे जो x3 और x4 से स्पैन होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वेक्टर्स
collection of vectors, collection of vectors, collection of vectors, okay, span by x3 एंड x4। ठीक है, अब x3 और x4 है तो दो ही वेक्टर जो है दो ही वेक्टर का कलेक्शन आपको मिलेगा, तो करस्पॉन्डिंग टू x3 एंड x4 अभी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बस जैसा आप क्वेश्चन करेंगे वैसा आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन तो अभी नहीं कर रहे, बस कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सारा हम लोगों ने किया हुआ है और भी करेंगे तो और ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कॉन्ट्रास्ट देखने का, ठीक है, कि कॉन्ट्रास्ट क्या है दोनों के बीच में। सो फाइनली वी लुक अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉलम स्पेस एंड रो स्पेस, ओके। कॉलम स्पेस and row column space and null space okay, null space. If we have a matrix, say we have a matrix okay, let A is this matrix of 4 cross 5 size, okay. Definitely it has 5 columns and 4 rows, okay. Now if we go to taking some row operations to get it row reduced equivalent form, or we say reduced equivalent form, that means REF, okay. Then we then A turns into the matrix like this: 1 0 1 1 1 0 1 1 minus 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके, क्लियर। ये कैसे करते हैं ये आप जानते हैं पहले से, अगर नहीं जानते तो आप जा करके रो इक्विवेलेंट फॉर्म का पूरा डिटेल और कुछ जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉलम स्पेस का डायमेंशन भी देखना है और नल स्पेस का भी डायमेंशन देखना है, ओके, क्लियर। तो अब देखिए, कॉलम स्पेस का डायमेंशन देखने के लिए हम लोग कॉलम विथ पिवोट्स देखेंगे, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए कॉलम विथ पिवोट्स तो दो ही कॉलम में पिवोट है, इसको ये फर्स्ट कॉलम में पिवोट है और दूसरे कॉलम में पिवोट है, ठीक है। बाकी कॉलम में पिवोट नहीं है, क्योंकि पिवोट के लिए कंडीशन है कि उसके ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और या आप सिर्फ नीचे भी 0 होगा तो चलेगा, चूँकि अगर रो में है तो करस्पॉन्डिंग कॉलम में भी वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी में इसलिए नहीं है कि इस R2 में चूँकि एक पिवोट ये हो चुका है रो 2 में, तो इस और एक ही रो में एक से ज़्यादा पिवोट्स नहीं हो सकते। एवरी रो हैज़ यूनिक पिवोट्स, ठीक है। तो R1 में भी 1 है, R2 में भी 1 है, तो करस्पॉन्डिंगली कॉलम 1 में 1 है, यहाँ पे कॉलम 2 में 1 है, ठीक है। तो 2 पिवोट कॉलम है, ठीक है, 2 पिवोट्स कॉलम, 2 पिवोट कॉलम्स, ठीक है। तो 2 पिवोट कॉलम है, तो इसलिए जो डायमेंशन है हमारा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली 2 हो जाएगा। देयरफॉर आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि भाई जो रैंक है वो 2 है, जैसा मैंने आपको बताया कि रैंक कॉलम स्पेस का डायमेंशन और रो स्पेस का डायमेंशन सारे एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। अब जिसमें पिवोट्स नहीं है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग में मेरे को क्या मिलना है, मेरे को फ्री वेरिएबल्स मिलने हैं, फ्री वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू 4 रोज़ यहाँ पे आपको 4 वेरिएबल होगा, x1 x2 x3 एंड x4, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि जो x2 है, जैसे जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है, 4 वेरिएबल है मेरे पास में, ठीक है, x1, अच्छा 5 वेरिएबल होगा, माफ़ कीजिएगा, चूँकि 5 एलिमेंट है ना, तो 5 वेरिएबल होगा, ठीक है। तो वेरिएबल वाइज जो है इसको मैं इसे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 वेरिएबल होंगे, तो जो सॉल्यूशन सेट मेरे को मिलेगा x, ठीक है, उसमें 5 वेरिएबल होंगे, x1 x2 x3 x4 एंड x5, ठीक है।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 0 ये फाइंड आउट करने के लिए यानी नल स्पेस के लिए, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप x1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ वाले एलिमेंट से, x3 x4 x5, ठीक है। इस तरह ये करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होकर के क्या होता है 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो फ्री वेरिएबल का जो कॉलम है इसके करस्पॉन्डिंग में ये x3 x4 और x5 ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्री वेरिएबल। तो फ्री वेरिएबल कितना है यहाँ पे, फ्री वेरिएबल आपका 3 है। तो आप बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, यानी जो नलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज बाय रैंक नलिटी थ्योरम इफ रैंक इज 2 देन फॉर द मैट्रिक्स फ्रॉम R5 to R4, okay, rank of A plus nullity of A is equal to dimension of domain which is 5. So if rank is 2 then nullity definitely 3, so that it satisfy the relation, okay। तो nullity 3 होना ही था, तो 3 तो आ गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये जो है कॉन्ट्रास्ट है, मतलब आप समझिए जब आप काम करते हैं तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो पिवोट्स वाले कॉलम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो नल स्पेस का डायमेंशन आपको देगा, या नल स्पेस किससे स्पैन होगा, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है वो उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। अच्छा, जबकि जो नॉन पिवोट कॉलम होंगे जिसमें पिवोट नहीं होगा, नॉन पिवोट कॉलम, ठीक है, तो वो आपको फ्री वेरिएबल्स की जानकारी देंगे, ठीक है। और ये वो वेरिएबल है जिसके टर्म में आप क्या करेंगे, पूरे सॉल्यूशन स्पेस को स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं आप इन दिस वे कि ये फ्री वेरिएबल इसलिए कहलाता है कि ये लाइक लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा फॉर द नल स्पेस विच स्पैन द टोटल सॉल्यूशन स्पेस। क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा जो है कॉन्ट्रास्ट है, एक ही मैट्रिक्स में पिवोट्स वाले आपको जो है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या कॉलम स्पेस का इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। मैं अगर बीच में एक पार्टीशन कर दूँ तो, और जबकि जो ये पार्ट है नॉन पिवोट वाला है वो आपको नलिटी या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के बारे में बताता है। तो आई होप ये आप पहले से भी जानते थे, बट एक लेक्चर इसके लिए ज़रूरी था ताकि आपको डिफरेंसेस वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है। इसको एक बार समराइज़ कर लीजिएगा अपने कॉपी पे कि रैंक कॉलम स्पेस, रेंज कॉलम स्पेस, ठीक है, आपका समटाइम रेंज स्पेस एंड रो स्पेसेस, ये सारे एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। और ये आपको पिवोट्स से पता चलते हैं, जबकि जो नल स्पेस है वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, क्योंकि ये सॉल्यूशन स्पेस होता है, ठीक है। यानी ये नल होने के बाद आपको जो सेट्स रिक्वायर्ड होगा वो उसको पता करना होता है। तो ये जो है जो फ्री वेरिएबल्स है, ये जो कॉलम्स विथ नॉन पिवोट कॉलम है, ठीक है, वहाँ से आप इसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू, देन इफ़ it is helpful for you then please like, share it with your friends, okay। If you have any issue please comment, okay। And if you have no issue then also good comments which provides energy, positive energy, okay। And definitely subscribe my channel if you are newer in my channel, okay। Thank you very much.